এদিন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ তৈলিক সাহু সভার সাহু গৌরব সম্মেলন, যেখানে নির্বাচিত বিধায়ক তথা বিজেপির মণ্ডল সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন সমাজের তরফ থেকে আগত অতিথিদের সম্মাননা জানানো হয় এবং একই সঙ্গে এদিন সমাজের তরফ থেকে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই সুন্দর অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। দেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুধু নয় আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই আমি প্রণাম। আজকের এই কার্যক্রমে উপস্থিত থাকবো বলে এক্সট্রা 2-3 দিন আমি কলকাতায় থেকে গেছি। कार्यक्रम হয়েছে, পুরো कार्यक्रम যেটা হচ্ছে না, আমি স্টার্টিং থেকে দেখছি খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে। পুরো যে অডিটোরিয়াম আছে ফুল হয়ে গেছে, মানে এখন আর কিছু দূর পরে দেখবেন লোক বাইরে থাকবে, কেন কি সিট নেই, অত লোক হয়ে গেছে এখানে। আর অত ভালো कार्यक्रम হয়েছে। সাউথ সমাজ সবসময় বিজেপিকে ভোট করে, আগেও এখনও, আর এবার আর ভালো कार्यक्रम হয়েছে, আর এর আগে আর ভালো कार्यक्रम। আমি খুব ধন্যবাদ এখানে যারা অর্গানাইজার আছে, তারা যারা আমাকে ইনভাইট করেছে, সবাইকে ধন্যবাদ। খুব ভালো কাজ এনারা করছেন। এনাদের কোনো সমস্যা হলে আমরা দেখব। এনারা ব্যবসায়ী সমাজ আছেন, আর সমাজকে যেটা আগিয়ে নিয়ে যায় সেটা হচ্ছে সাহু সমাজ। তো খুব ভালো লাগলো আমার এখানে আসলে, খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ। পশ্চিম বাংলাতে হিন্দুদের সরকার, সনাতনী সরকার এই প্রথম এসছে, সেই জন্য সমস্ত মানুষের মুখে খুশি আছে। সমস্ত মানুষকে আমরা যা সংকল্পপত্রে লিখেছিলাম একদম সেগুলো আমরা সবাইকে পৌঁছাচ্ছি এবং একসাথে হচ্ছে না, মাত্র 2 মাস সরকার হয়েছে। আগামী দিন যা যা আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাখবো, এই জন্য মানুষ খুশিতে আছে। দেখুন, গত সরকার যে ছিল সেই সরকার শুধু নিজেদের জন্য ভেবেছে, কার্যকর্তাদের জন্য ভেবেছে, আর দুর্নীতির সাথে সম্পর্ক ছিল। এখন যে বর্তমান সরকার চলছে এই সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকার আছে। কারণ আপনারা 14 সালে থেকে ভারতবর্ষের যে সরকার দেখছেন, বাজপেয়ীজির যে সরকার দেখেছেন, কেউ দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে পারেনি। সেই জন্য এই সরকারের উপরে ভরসা আছে, ব্যবসায়ীদের ভরসা আছে। আর আগামী দিন পশ্চিমবাংলাতে ব্যবসা খুব হবে, কারণ আপনারা দেখছেন ইন্ডাস্ট্রি আসছে। ব্যবসা ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিল্পের উপরে আমাদের যে মুদ্রা যোজনা লোন আছে, সেখান থেকে আমরা মুদ্রা যোজনা লোনের মাধ্যমে যুব সমাজ যাতে ব্যবসা করতে পারে ছোট ছোট, সে তার উপরে জোর দিচ্ছে। এই জন্য সমাজ পুরো খুশিতে আছে। और उससे ही भविष्य में रास्ता निकालने का मार्ग ढूंढना। आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के नेतृत्व में राजनीति प्रकोष्ठ के द्वारा माननीय दुर्गा बाबू और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रूपचंद बाबू के भगवान दास जी, मिश्री लाल साहू जी, महामंत्री शिवशंकर साहू जी, सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में आज जो बहुत दिनों के बाद हमारा राजनीति प्रकोष्ठ के द्वारा एक जो बदलाव आया है पश्चिम बंगाल सरकार में, और ख़ासकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी का स्वस्थ रूप से 12 साल के काज पूर्ण हुआ, उसी के उपलक्ष्य में जो आज पश्चिम बंगाल में सरकार के सभी नेतागण एवं विधायक एवं मंत्री जी, खासकर हमारे राज्यसभा के माननीय राहुल सिन्हा जी भी आज हमारे साहू गौरव सम्मेलन में महाजाति सदन में अपना अनमोल कीमती समय दिए हैं। आज हमारे साहू परिवार सभी भारतीय जनता पार्टी नेता को पाकर धन्य हो गया है, और ख़ासकर ओबीसी के नेता शुभेंदु जी के अध्यक्ष के रूप में जो आए हैं, उन्होंने ओबीसी के बारे में बोले हैं कि हम लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हम लोग की भी मांग है कि हम लोग को ओबीसी की सर्टिफिकेट के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारे बच्चों के पढ़ने का जो भविष्य है, जो ओबीसी के बिना अधूरा हो जाता है। तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इस विषय पर भी हमारा ओबीसी के लिए तुरंत बनना चाहिए और हमारे बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। और इसके साथ मैं भवानीपुर एवं पूरे साहू समाज की तरफ से सभी आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा का सौरभ गौरव साहू सम्मेलन का जो प्रोग्राम का शोभा बढ़ाएं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
और इससे आगे मेरा भवानीपुर साहू समाज का भी मेरा प्रोग्राम 6 सितंबर को 21वां साल हो रहा है, इसका भी हम लोग विचार रखे हैं, प्रोग्राम करेंगे। और कलकत्ता साहू समाज का भी छात्रवृत्ति का प्रोग्राम 10-12 पास का 18 सितंबर का होने जा रहा है। इसके लिए भी सभी से आग्रह है, सभी अपने आज जिस तरह से उमड़ कर भीड़ आए हैं, सभी एक परिवार लग रहे हैं, पूरे आज साहू परिवार का सभी साथ, सबका विकास, तब होगा साहू समाज का विकास। जय साहू समाज। समाज तो चलाना है ही, प्लस में से पार्टी पॉलिसी भी थोड़ा समझ जरूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि समाज में हम लोग सब काम कर पाते हैं, लेकिन पार्टी नहीं होता है तो वहाँ पर काम बहुत सारा अटक जाता है। जैसे ओबीसी तो हो गया मस्ट, और छोटा मोटा कोई भी काम हम लोग के लेके जाते हैं, जैसे टीएमसी था नेता, तो कोई भी काम लेके जाते थे तो लोग बोलता था नहीं ये चाहिए वो चाहिए, किसी तरह भेगा देते। लेकिन साहू समाज से हूँ, मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज यहाँ बड़े बड़े नेता और हमारे समाज से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इंस्पायर किया आगे जाके समाज में और ज़्यादा उन्नति हो और इस तरह का प्रोग्राम और ज़्यादा हो। हमारे तेली साहू समाज को साहू परिवार को ओबीसी में आने का मौका मिले। ओबीसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, तो ये हम लोग चाहते हैं कि ज़रूर से ज़रूर ओबीसी में हम लोग शामिल हो और इसके लिए यथा जितना संभव हो प्रयास किया जाए। धन्यवाद। প্রথমেই বলবো আমার প্রণাম নমস্কার নেবেন আমার কি কলকাতা তেলি সাহু সমাজ। আমি হয়তো ভুলভ্রান্তি যদিও হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমার তো এইভাবে সবসময় ক্যামেরার সামনে বা মাইকের সামনে আসা তো অভ্যাস নেই, তাও আমি বলার চেষ্টা করছি, কারণ মনের কথা তো বলতে গেলে তো এটা শিখতে লাগে না। তা আমরা যেহেতু যেই কাজগুলো করে এসেছি, যেটার জন্য আমরা আমাদের মাননীয় মোদিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা এই যে বিজেপিকে এনেছি, তার জন্য শুধু আমরা আনন্দ উল্লাস করার জন্য না, কারণ আমাদের একটা সময় যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ছিলেন প্রাক্তন, উনি এতটাই আমাদের ওপরে অত্যাচার শুরু করেছিল যে আর নেওয়া যাচ্ছিল না, যে এতটা পরিমাণে মুসলিমকে আগিয়ে এনেছিল যে আর নিতে পারছিলাম না। আমরা ঘরের আমরা মা দিদি বোন হয়ে আমাদের ঘরের বলুন তো কত ছেলেদের হারিয়েছি, সন্তানদের হারিয়েছি, কত সবাইকে ঘরের বাবা মা কত মানুষকে হারিয়েছি। রীতিমতন আমাদের কে গেল, ঘরের সব সন্তানরা গেল, বিশেষ করে ঘরের ছেলেগুলোর জীবন চলে গেল। মানে এটা আজকে সম্মেলনে এসে খুবই ভালো লাগছে, এত লোক এত সব দেখেই সত্যি মনটা ভালো লাগছে। আজ টুডে 10 জুলাই 2026 আজকে শুক্রবার দিন আমরা এসছি এইখানে সাউথ সমাজে মহাজাতি সদনে, আমাদের পুরো টিম এইখানে এসছে। কিন্তু আমাদের এত ভালো লাগলো কি একটা পরিবার আছে, একজুট আছে, এই একজুটের জন্যে মানে আমরা বহুত উৎসাহিত আছি কি এইরকম প্রত্যেকটা সমাজ হোক আর সব সময় প্রোগ্রাম করুক। আর আমরা একটা যুদ্ধ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে আমরা মিলে মানে আজকে বাংলাদেশ যদি এটা হয়ে যেত তো কী হতো, যদি মমতা সরকার এসে গেলে এটা 2026-এর নির্বাচনে বাংলাদেশ হতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে ইনি একটা জজের ছেলে ছিল, ওনার বাবা জজ ছিল, আর উনি যখন মারা গেছে ভুলে কাশ্মীরে গিয়ে উনি মারা গেছে। তো আমার বলার বক্তব্য এটাই, আপনারা সব মিলে এরকম একজুট হন আর साहू समाज मतन सब समाज के एकजुट हुए अपनारा हिंदू को एक कीजिए। मेरा नाम परशुराम शर्मा, 185 उत्तरपाड़ा विधानसभा, जो हम लोग विपुल वोट से जीते हैं, एक्स एनएसजी कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती। जिसका माथा पर सिंदूर है वो हमारी माँ है, हम लोग माँ की लहर से देखेंगे। जिसके माथा पर सिंदूर नहीं है वो हमारी बहन है, हम बहन की लहर से देखेंगे। यदि केउ चोख तुले केउ उल्टो पुल्टो चोखे देखे আমরা চোখ কেড়ে নিব, কিন্তু কেউ দেখবে না। কেন? এখন এসে গেছে भारतीय जनता पार्टी। यशस्वी और युवा विधायक विजय ओझा जी हमारे इस चौरंगी से, हमारे नेता संतोष पाठक जी एवं उपस्थित सभी साहू समाज के मित्रजन। अभी राहुल सिन्हा जी अपनी बातों को जब रख रहे थे तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि राहुल दा तो पूरा साहू समाज, हिंदुत्व, श्री राम जी सबकी बात कर दिए हैं। तो विजय जी हमको बोले कि हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम राहुल दा को बोल रहे थे कि सारी बात को राहुल दा रख चुके हैं।
हम लोगों के तरफ से। देखिए, पूरे बंगाल में लोग खुश हैं और दिल से खुश हैं, तो अच्छे जगह अच्छा आयोजन ही होगा। सब दिल से आयोजन कर रहे हैं। अभी रात का 8 बजने जा रहा है और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। ये संकेत देता है बंगाल में खुशहाली का, बंगाल में डर खत्म हो चुका, भरोसाहीन हो चुका है इसका, और बंगाल की जनता अब आगे बढ़ चुकी है। ये कार्यक्रम के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से और इन संस्थाओं के काम के माध्यम से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि समाज है, ये समाज, आप साहू समाज तो आप नाम सुन रही हैं, लेकिन आप बताइए, इसमें साहू समाज में संजय सिंह भी हैं, राहुल सिन्हा भी हैं, विजय ओझा भी हैं और संतोष पाठक भी हैं। तो समाज का एक बैनर लगा हुआ है, काम है उनका देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो बुजुर्ग लोग जिस काम को करके गए हैं उस काम को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक समाज क्या दूसरे समाज के लिए काम नहीं करेगा? तो हमारे यहाँ समाज अलग है लेकिन काम सबका है, राष्ट्र से। शुभकामना देना नहीं चाहेंगे, शुभकामना इन लोगों से लेंगे, क्योंकि इन लोगों के सहयोग से ही आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। साहू गौरव सम्मेलन बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पेश किए गए हैं। हम साहू बंधु का गौरव का दिन है, इसमें सभी मंत्रीगण लगभग आ रहे हैं और सब अपना अपना वक्ता रख रहे हैं। और इस सम्मेलन से हम साहू समाज का हमेशा गौरवान्वित रहेंगे और इस कार्यक्रम को हमेशा आगे और भी अच्छा से पेश करते रहेंगे। जय साहू समाज। एक बार के विधायक लेकिन बहुत बार बनेंगे विधायक, क्योंकि इनके अंदर बहुत नम्रता है, लोगों का सेवा करने का भावना है। वो हमने साथ में रह के ये देखा है। विजय ओझा जी मंच पे उपस्थित, साहू तेली समाज के भगवान जी, रूपचंद जी, दुर्गा प्रसाद साहू जी, संतोष जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और आप तमाम सारे भाई बहन। राहुल जी जैसे हम नहीं बोल पाएंगे, बहुत बढ़िया बोले, और विजय बाबू भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। हम बहुत अच्छा नहीं बोलते, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे छोटे भाई ने कहा 4 बार हम चुनाव जीते, लेकिन 4 बार चुनाव हारे भी हैं। विधायक का 4 बार हम चुनाव हारे हैं, इस बार भी हम चुनाव हारे, लेकिन एक वर्ग के चलते हैं। देखिए, साहू समाज पहले से ही हमारा बीजेपी का राष्ट्रवादी लड़ाई का साथ दिया, और राष्ट्रवादी लड़ाई को साथ देने के लिए इस समाज का लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा, और इसीलिए इस राष्ट्रवाद का लड़ाई में साहू समाज जो साथ दिया, उनको सहयोग देने के लिए हम आज साहू समाज का इस कार्यक्रम में पधारे। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने राष्ट्रवाद और अपना धर्म अपना कर्म का जो लड़ाई उन्होंने लड़ रहा है, और समाज का सेवा, जनता का सेवा इन लोगों ने कर रहा है, इसको भी मैं बहुत अंतर से मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, और आगे चल के भी और भी काम करे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। आज साहू समाज में आकर के अपने आप को गर्वित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि साहू समाज हमेशा से राष्ट्रवाद और धार्मिक विचारधारा के साथ रहा है, और साहू समाज का इतिहास रहा है। और यहाँ पर आकर के और अच्छा इसलिए लगा कि नए बंगाल के अंदर, नए बंगाल को बनाने के लिए साहू समाज ने अपना योगदान दिया, और इसलिए गर्वित महसूस हुए। आज के इस 12 साल हो गए, माने एक कुंभ भी 12 साल में आता है, साहू समाज के एक सामाजिक कुंभ में आकर के खूब गर्व महसूस हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि देश, समाज का गौरव ऐसा रहा है कि महाराणा प्रताप से लेकर के हमेशा से राष्ट्रवाद यानी देश की बात होती है, तो अपना योगदान दिए हैं।
और उनके योगदान से देश मजबूत रहा है, उनके सहयोग से देश मजबूत रहा है, उनके योगदान से देश ने संघर्ष करना सीखा है। इसलिए इस कार्यक्रम में आकर के अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। अरे बहुत बहुत शुभकामना। विजय बाबू बोल दिए तो बहुत अच्छा बोले। विजय बाबू जैसे हम नहीं बोल पाएंगे, बहुत बढ़िया बोले। चलिए, ये अरेंजमेंट तो हम ही लोग, ये वेस्ट बंगाल साहू समाज जो है, ये हम लोग सॉल्ट लेक साहू समाज, आदर्श साहू समाज सभी मिलकर हम लोग जो है इस आयोजन को किए। हम लोग चाह रहे थे कि ये जो हमारा समाज आगे बढ़े, फले फूले, कि इस चीज़ में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर हमें समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, हम लोग समाज का नाम और कैसे ऊंचा आगे बढ़े, इसलिए हम लोग सोचकर ये कार्यक्रम हम लोग किए हैं। आज जो है हम लोग बहुत गदगद हैं कि हमारे समाज में बड़े बड़े नेता लोग आए हुए हैं, सभी लोग आए, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत गर्वित हैं कि हम लोग का ये समाज का बहुत नाम और आगे बढ़े, हर समाज के काम हम लोग आगे चलकर और बढ़ चढ़ के करें, यही हमारा सोच है। हम लोग साहू समाज का ये सोच अब बोलकर यही हम शेष करें अपने वक्त। आज मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में ये सभा को रखा गया था। इस सभा में उपस्थित राहुल सिन्हा जी ने हम लोग के समाज के विषय में जो सब कहा है, बहुत लोग यहाँ पर कुछ जानते भी नहीं थे। समाज के तो लोग हैं, लेकिन इतने अंदर की बात नहीं जानते थे। बहुत लोग आज राहुल जी के बाद से इस विषय को समझे हैं, जाने हैं, और आगे भी हम लोग जैसे भामा साहू जी किए थे, वैसे भी हम लोग आगे भी इसको और बढ़ाने का चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। और ये समाज, ये बदलाव में इनका जनसंख्या हमारे पश्चिम बंगाल में 18 लाख है और बहुत मुख्य भूमिका ये लोग निभाए हैं चुपचाप। और भारतीय जनता पार्टी को लाने में ये जो जश्न में 4 चांद लगा है, ये आज़ादी के बाद, पश्चिम बंगाल के आज़ादी के बाद, ये नहीं तो हम लोग ये इस तरीके से साहू समाज नहीं कर पाते। यदि आज आज़ाद बंगाल नहीं होता तो महाजाति सदन में इस तरीके का प्रोग्राम निडर होके और साहस से ऐसा नहीं कर पाते जो आज हम लोग कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप जिंदा दिली अपने समाज को आगे बढ़ाइए। हम लोग आपके साथ में हैं। और ये साहू समाज पूरे पश्चिम बंगाल में समझ लीजिए, मोदी दुकान हो चाहे खाना पीना तक पहुंचाने का काम हो, तो साहू समाज का पश्चिम बंगाल में बहुत योगदान है इसके लिए। जी नमस्कार। अभी जय जयकार है साहुओं का। पश्चिम बंगाल में पहले भी जय जयकार था, और ये 26 साल के बाद नया गवर्नमेंट आने के बाद में तो हम लोग एकदम बिल्कुल एवरेस्ट में हैं हर मामले में। नहीं है, इतना कह सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग से लेकर गंगा सागर तक साहू समाज का सब, हम लोग का सभी का एक अपना अपना भवन है। और जहाँ नहीं पहुँचा रेलगाड़ी वहाँ पहुँचा मारवाड़ी। उसी तरह से जहाँ पर नहीं पहुँचा है कोई गाड़ी, वहाँ पहुँच गया है हमारे तेली साहू बंधु लोग। इस तरह ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है पश्चिम बंगाल में कि जहाँ पर हम लोग का साहुओं का वहाँ संगठन नहीं है, साहुओं का वहाँ बसवास नहीं है। इसलिए साहू यहाँ पर हम लोग का करीब 13 लाख और अधिक 13 लाख से अधिक हम लोग का जनसंख्या है, 13 लाख से अधिक है। तो हम लोग तो बिल्कुल माने बम है। और हमारे समाज के बेटा हैं हमारे मोदी जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। वो साहू परिवार से आए हुए हैं। हम लोग का गलती हो गया कि हम लोग क्यों नहीं इंडोर स्टेडियम बुक किए। अगर इंडोर स्टेडियम बुक करते तो भी कम होता शायद। धन्यवाद। बिल्कुल लोग नकल कर रहे हैं। मेरा कहावत है, देखो एवं दिखाओ। जो हम लोग कर गए हैं, अब हम लोग का जो बाकी है और आगे उदयमान के रूप में हम लोग काम करेंगे। बच्चे लोग सफलता का तो जो आप बता रही है, इसका तो मतलब यही हुआ कि ये प्रोग्राम जो है, लोग यहाँ से 4:30 बजे से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे संस्था के माने समझो कि टालीगंज से जो वहाँ से लोग आए, बाहर के जो भी संस्था के लोग आए हुए हैं, बस लेकर के आए हुए हैं ये आज का प्रोग्राम जो है अटेंड करने के लिए। ये जो साहू गौरव सम्मेलन जो हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार इतना अच्छा से हुआ। कार्यक्रम भी आप भी जो देख रही हैं, इतना अच्छा से संपन्न हुआ कि मेरे समझ से ये हम लोग का महाजाति सदन में जो ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इसको जितना भी प्रोग्राम हुए सबसे उन्नत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारे
जो भी पॉलिटिकल विंग के सदस्य लोग हैं, जैसे दुर्गा जी है, नकुल जी है, अनिल जी है, सभी का प्रयास से जो है ये प्रोग्राम इतना अच्छा सफल हुआ। और इन लोगों का और भी आगे प्रयास रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल विंग आगे और जो है इसको आगे बढ़ाएगा और अच्छा कार्य करेगा। हम लोग का बहुत पुराना ये सपना है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक प्रोग्राम करना चाहिए और आशा करते हैं कि हम लोग दुर्गा पूजा के समय तक हम लोग उसको अपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, न्यूज़ बंगला की आप एंकर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल के लिए ये शुभ संदेश है कि मोदी जी के 12 साल के सुशासन के अवसर पर पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के माध्यम से आज इस महाजाति सदन में जिस ढंग से आपने साहुओं की उपस्थिति को देखा है और जिस माध्यम से हमारी संख्या यहाँ पर उपस्थित थी, ये हम लोगों के लिए जो आपका कहना है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम बुक करना चाहिए, सचमुच बुक करना चाहिए। क्योंकि आज जो मैंने यहाँ महाजाति सदन में लोगों को बुलाया है, हमारे इस पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा की 45 शाखाएँ हैं और जिसमें जो है 23 ज़िलों में 13 ज़िले का संगठन है। और यहाँ पर सिर्फ जो है हमारे जो 45 संस्थाएँ, हमारी जो शाखाएँ हैं, उनके सिर्फ 5 प्रतिनिधि को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया है और जिला कमेटी के 10 लोगों को आमंत्रित किया है। इस ढंग से हमारी संख्या आज यहाँ देख रहे हैं 1500 करीब हो गई है। इतना रोकते रोकते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम छोटा मोटा जगह में होने वाला नहीं है, लेकिन आज ये मोदी जी का जो सुशासन 12 साल का था, जो परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिसमें हमारे साहू समाज की एक अग्रणी भूमिका रही है, हम लोग परिवर्तन का जो हिस्सा बने हैं, ये आज बताते हुए और अपने लोगों के बीच में और माननीय मंत्रियों जी के बीच में, माननीय राहुल सिन्हा जी के बीच में ये बात रखते हुए बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ कि साहू समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है। और आज देखा जाए तो साहू समाज सेवा का पर्यायवाची पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में बना हुआ है। और आज जिस ढंग से हमारी संख्या है, जिस ढंग से हम हर समाज के दिलो दिमाग में, और हमारी ये 45 संस्थाएं जो सेवा करती हैं अपने अपने क्षेत्र में, हर समाज के दिलो दिमाग में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आज हम नेताओं के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, हम समाज सेवा के माध्यम से जनसेवा किए हैं और आगामी दिनों में राजनीति में भी हम चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इसको नेताओं के माध्यम से इस पश्चिम बंगाल सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई, जिस ढंग से हमारी भागीदारी है, जिस ढंग से हमारा सेवामूलक कार्य है, उस ढंग से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा माननीय अध्यक्ष रूपचंद प्रसाद जी के नेतृत्व में आज जो जनमानस की मूल आवश्यकता होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर बहुत सुंदर ढंग से काम किया जा रहा है। आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे विंग बने हुए हैं, यूथ विंग, महिला विंग, पॉलिटिकल विंग, जिसमें यूथ विंग जो है वो शिक्षा क्षेत्र में बहुत सुंदर काम कर रहा है। जो 10वीं 12वीं में बच्चे पास होते हैं, उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था, उन्हें उनके किस क्षेत्र में वो अपना मन बना चुके हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी किया जाता है हमारे यूथ विंग के द्वारा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो ये पूरे भारत में विदित है। साहू समाज के माध्यम से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बाबू घाट में आज 56 संस्थाएं सेवा करती हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा एक ऐसी संस्था है जो एक ट्रांजिट हॉस्पिटल की व्यवस्था करती है, जिसमें 12 बेड के साथ 24/7 सेवा दिया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाता है। सबसे पहले प्रत्येक साहू बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद इतना भव्य प्रोग्राम करने के लिए। ये साहू गौरव सम्मेलन, रियल साहू गौरव सम्मेलन था। आज हमारे लिए जितने भी तैलिक बंधु हैं हमारे पश्चिम बंगाल में, उसके लिए गौरव का क्षण था। इतना भव्य प्रोग्राम हुआ, इतने अच्छे हमारे गेस्ट लोग आए, पूरा ये सभागृह भरा हुआ था। ऐसा आनंदित हो रहा था कि हम लोग का गौरव जिस तरह से समाज में बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक क्षेत्र में हमारा तैलिक बंधुओं का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसी का यह कारण है कि हम लोग इतना भव्य प्रोग्राम कर सकें। इसके लिए तहे दिल से भारतीय पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के प्रत्येक सदस्यों को बहुत बहुत आभार और नमन प्रकट करता हूं।
उन लोगों का धन्यवाद देता हूं, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, ना दिन देखा ना रात देखा, सुबह देखा ना शाम देखा, दोपहर देखा ना छाँव देखा, धूप देखा ना छाँव देखा। उनका अथक प्रयास, अथक मेहनत के बल पर इतना भव्य प्रोग्राम का आयोजन सफल हो पाया। परिश्रम सब समय करते हैं और जानते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है, और हम लोग को ये प्रैक्टिस में हो गया है कि साहू समाज का सम्मेलन को सफल करना है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम लोग फेयरफील्ड में किए थे, नोवाटेल में किए थे, और आज महाजनी सदन उसी माने रास्ते में एक और कदम है। इसके बाद हम लोग अब लग रहा है कि हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में नेक्स्ट मीटिंग करने में हम लोग को कोई असुविधा नहीं होगी। जिस तरह से साहुओं लोग का माने उत्साह बढ़ गया है, सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। आज सबसे ज़्यादा हम लोग एक नए पौधे को जोड़ा है। मनोज बाबू के लड़के आकर के मीटिंग में आकर के इस तरह से उत्प्रेरित होके गए हैं कि आगे चल के इस तरह के बच्चे हम लोग के समाज में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये जो न्यूज़ चैनल न्यूज़ बांग्ला और जो दिव्यांश जो है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो आज का प्रोग्राम को कवर किए हैं। देखिए, साहू समाज जब से हमारे भाजपा आए हैं, हम लोगों में एक जान आ गया है। अब लग रहा है कि हम राष्ट्र के लिए हमारा साहू समाज और भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे और आगे साहू समाज एक अच्छे जगह पे पहुंचेंगे। ऑलरेडी हम लोग काम करते थे, अब क्या है कि हम लोग और अच्छे से काम कर सकें, ताकि ये भाजपा हमारे साहू समाज के बड़े भाई के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं और हम लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पश्चिम बंगाल संस्था जो है उसमें एक पॉलिटिक्स विंग है, एक अलग उसका एक मान्यता दिया गया है। आज वही पॉलिटिक्स विंग के तरफ से एक सामाजिक प्रोग्राम और आपको जो भी प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो भी जीत करके जो भी आए हैं उन्हीं को सभी को सम्मानना देना, सभी को सम्मान करना, यही आज का प्रोग्राम का एजेंडा था। साथ में साहू सम्मेलन, मोदी जी का सर्वाधिक समय 12 साल पूरा हुआ, जो आज तक का सर्वाधिक प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो जो हम लोग के जाति से के गौरव हैं, उस वही जाति सम्मेलन साहू गौरव सम्मेलन जो रखा गया था, आज उसी के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम सजाया गया महाजाति सदन में। और जितना भी सीट था, सीट से भरकर ओवर आदमी सभी आए, सभी ने अपने कीमती समय वर्षा के मौसम में भी बढ़ चढ़ कर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाए हैं। इसलिए मैं पॉलिटिक्स नहीं, कलकत्ता साहू समाज पश्चिम बंगाल तेलुगु साहू सभा के जिला अध्यक्ष के नाते मैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने भीषण बरसात में भी आकर के इस प्रोग्राम को सब सफल बनाए। और जितने को निमंत्रण दिए गए, लगभग बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे मंत्रीगण आए थे, मैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम को सब सक्सेस किए और आप लोग को भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भी बहुत कीमती समय दे करके पूरा प्रोग्राम को कवरेज लिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहू समाज। व्यूअर्स के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं 18 सितंबर 2026 को इसी महाजातीय सदन महासभागृह में कलकत्ता साहू समाज के द्वारा आयोजित छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह और स्कॉलरशिप प्रोग्राम होने जा रहा है। तो पुनः आप सभी के जितने व्यूअर्स हैं उसे निवेदन करता हूं कि आप लोग आएँ, हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हों और उसको सफल बनाएं। जय साहू समाज। तो राजनीति में है ही, राजनीति में तो साहू समाज सब समय था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर राजनीति में नहीं थे तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो हमारे अभी भी हमारे सेंट्रल में मिनिस्टर तोखन साहू हैं, वो भी हमारे तेली हैं। तो ऐसा बात नहीं है, साहू हमेशा राजनीति में भी सक्रिय रहा है, समाज में सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहा है, हर क्षेत्र में साहू समाज सक्रिय रहा है। और हम लोग अपनी सक्रियता और अपनी भागीदारी हर जगह हम लोग करने के लिए, स्थापित करने के लिए हम लोग हर समय कार्यक्रम करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है इसका एक्चुअली रूपरेखा मेरे दिमाग में आया था कि मोदी जी के 12 साल के पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया जाए। उस कार्यक्रम का नाम भी साहू गौरव सम्मेलन हो
क्योंकि मोदी जी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे समाज के हैं। और इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए मैं सभी उपस्थित यहाँ आए सभी साहू परिवार के लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं सभी को नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, जितने भी अतिथि आए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। नमस्कार। आज हम लोग मोदी जी का 12वां साल का महोत्सव मना रहे हैं साहू समाज के तरफ से। और क्या करेंगे? हम साहू समाज के हम महिलाएं बढ़ चढ़ के प्रचंड रूप में आकर मोदी जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं 12वां महोत्सव के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहें और हम उन्हें देखते रहें और हमारा देश प्रगति की रास्ते पे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। कुछ भी बोलो। सब महिला लोग सब मोदी जी के साथ है। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। हमारा मोदी जी हर महिला लोग के सुरक्षा के लिए हर कुछ काम करते हैं। अभी जय श्री राम। मोदी जी आने से हम लोग बहुत खुश हैं, मैंने और इससे अच्छा और करे और हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में मोदी जी की सरकार बनी है। बहुत सारे मेहनत के बाद आज हम लोग ने बीजेपी सरकार को हमारे यहाँ पे लाया है। इस उत्साह में आज हम लोग ने ये महाजाति सदन में ये एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमारी टीम की सारी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पे आपने आगे आए और प्रयास किए हैं और हम सब चाहते हैं इसी तरह हम लोग सारी महिलाएं मिलकर हम लोग बहुत आगे बढ़े। हमारे लिए अभिनंदन है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की। साहू गौरव सम्मेलन है, ये अभी इसलिए कराया गया कि मोदी जी का शासन का 12 साल गुजरा और बहुत सुशासन बोलेंगे इसको, सुशासन का 12 साल गुजरा। साथ में ही हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक स्टेट को हम लोग ने जीता, जहाँ पर हमारा क्या था, सोचा ही नहीं जा सकता था कि यहाँ को हम लोग तृणमूल पार्टी को हटा पाएंगे, एक त्रासदी वाली पार्टी को हटा पाएंगे और इसको हमने हटाया है। ये हमारा गौरवपूर्ण जीत है और मोदी जी के बहुत बड़ा जीत है जो कि हम लोगों को उपहार में मिला। बहुत मेहनत करना पड़ा है इस जगह पे आने के लिए। अभी तक हमें विश्वास नहीं है कि हम लोगों ने ये बंगाल जीत लिया है। जो भी पुराने लोग जिन्होंने झगड़ा करके लड़ाई करके आज इस जगह पर पहुँचे हैं उन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। 4 तारीख के बाद वाले लोगों का तो है ही, काम ही है ये, उनको तो समझ में नहीं आएगा। उनको तो लगता है कि हाँ चेंज हो गया, इधर से उधर आना है, उनको आदत है। पर हमें विरोधिता की आदत थी ना, तो अभी भी वो आदत थोड़ी बनी हुई है। अभी शासन का वो आदत नहीं लगा है, धीरे धीरे लगेगा। हमारे जितने सारे एमएलए हैं, जीते हैं, जितने विधायक कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से कैसे अच्छा काम किया जाए और वो करने की कोशिश में वो अच्छा कर भी रहे हैं। ये हमारी शिक्षा, हमारा एक सुशासन बैठा हुआ है, हमारा लीडर बैठा हुआ है जो कि मोदी जी हैं, हमारे साथ देते हैं और वो उनका बताए हुए रास्ते पे हमारे एमएलए, हमारे विधायक चलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा, सब सुशासन में ही होगा और बंगाल का एक भविष्य, उज्जवल भविष्य सामने आएगा। आज मैं ये बोलना चाहती हूँ, साहू गौरव सम्मेलन ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है और पॉलिटिकल विंग का सब लेडीज़ लोग हम लोग बढ़ चढ़कर साथ दिए हैं, तो महिलाओं में भी बहुत जोश था और हम महिलाएं बहुत ही उत्साह से अपना कार्य को समापन किए हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा हमारा ये साहू गौरव सम्मेलन। मोदी जी को बंगाल में जीतने की खुशी में हम लोगों ने मनाया है आज, और हम लोगों को तो विश्वास नहीं था कि हमारा बंगाल कभी बीजेपी राज में आ सकेगा, लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। जय साहू समाज। बहुत अच्छा हुआ। जय हर हर महादेव। मोदी जी को जय श्री राम। बहुत मेहनत किए थे और मेहनत सफल होता हुआ देख बहुत अच्छा लग रहा है। पश्चिम बंगाल तेलिक साहू सभा पॉलिटिकल विंग द्वारा किया गया ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 साल का पूर्णता के बाद हुआ है।
हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम बहुत अच्छा तरीक़ा से हुआ और इसकी गूंज आप पब्लिक जितनी आई उसको देख के हम लोग अनुमान कर सकते हैं। इसके लिए जो उत्साह और जो नेतृत्व हमारे साथ थे वो बहुत ही सुंदर थे। राहुल सिन्हा जी, राकेश सिंह जी, विजय ओझा जी, बहुत सारे नेता नेतृत्व हमारे यहाँ उपस्थित रहे और प्रोग्राम को सुसज्जित तरीक़े से किए। इसलिए धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।